So good morning, everyone. Today is our second class for CA Intermediate, Paper 1, new syllabus. Now, last class I had given you a brief introduction about accounting standards. There are various types of accounting standard which is there in your intermediate curriculum. Almost everything is there. All the accounting standard issued by National Advisory Committee on Accounting Standard, that is there in your syllabus. Last class, this time the syllabus has been grouped. The accounting standards have been grouped. Presentation and disclosure related few accounting standard 1, 3, right? Then few asset related accounting standard 2, accounting standard 10. Then few revenue related, right? Like this, they have grouped. Few holding company, consolidated balance sheet, right? And there are few other chapters. So today we will start with asset-based accounting standard, and this is one of the very easiest accounting standard which we are picking up today. That is accounting standard 2, right? There are certain questions which are there in institute study material. First we will do from those study materials, and then I'll be giving you my own few questions, right, that I have prepared. So we will do from that later, right? Now this book has been designed in such a way so that you don't have to face any problem. As you can see, ICAI is working very hard on developing the content for the students, right? So this accounting standard 2, which purely deals with valuation of inventory, those who have done graduation semester 1 across various universities, in that also we have this chapter inventory, right? And you might have heard these words store ledger, LIFO, FIFO, right? All those things we'll discuss today. So now you can see the learning outcome. This is very important. As I told you in the very first class, when you are doing any particular standard or any particular chapter, you should be knowing what I'm going to study in this particular standard, right? This standard is related to what? Is it related to expense, or is it related to income? Is it related to asset, or is it related to liability? Because we know that books of accounts are to be prepared in accordance with accounting standards. ये हम लोगों को मालूम है कि जो भी books of accounts बनाना है हम लोगों को, वो that is in accordance with accounting standard बनाना है, right? अगर मैं फॉरेन कंट्री में अकाउंट्स कर रहा हूं, फॉरेन कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं, देन इन दैट केस आई हैव टू फॉलो उस कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स और आईएफआरएस. अगर उसका अपना नहीं है तो आईएफआरएस यूज कर सकता है. एनीवे, हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग इंडिया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे. डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्विकली अगर मैं बोलूं, 3 टाइप का इन्वेंट्री होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में. वन इज रॉ मटेरियल which is yet to be used in the production process. Another one is WIP, which is in the production process. And the last one is finished product, मतलब बन गया है but बिका नहीं है अभी तक. So if I talk about manufacturing entity, there are 3 types of inventory: raw material, WIP, finished goods, right? और अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न की बात करूं तो ओनली फिनिश्ड गुड्स. राइट? नाउ ईच ऑफ दिस इन्वेंट्रीज का हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे. बचपन में हम लोगों को मैम बताती थी क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. फिर जब थोड़े बड़े हुए हम लोग, तब हम लोग को सिखाया गया क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, राइट? Now you see there are different types of inventory. One is raw material, which is yet to be used in the production process. Another one is WIP, which is in the production process. And the third one is finished goods produced but not yet sold. तो तीनों टाइप का जो इन्वेंट्री मेथड है ना, तीनों टाइप का जो इन्वेंट्री है, सॉरी, whatever is the inventory, रॉ मटेरियल है, कुछ रॉ मटेरियल बचा होगा, कुछ WIP बचा होगा, कुछ फिनिश गुड्स बचा होगा. जो भी हमारी इन्वेंट्री है ना, राइट? सी, आई एम योर ट्रेनर, मैं आपका एक गाइड हूं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूट के जो भी सवाल आएंगे, इंस्टीट्यूट का जो भी क्वेश्चंस आएगा, वो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल से आएगा. मैं आपको इसी को रीटाइप करके अपना नाम छाप के उसमें आई वोंट गेन एनीथिंग मच, राइट? यू आल्सो वोंट गेन एनीथिंग मच. You have joined the CA intermediate course. Institute have done a lot of hard work in order to build this study material.
So we will do it from this study material. There's no problem, harm in that, right? So अब देख रहे हैं तीन टाइप की इन्वेंटरी है, रॉ मटेरियल भी हो सकती है, डब्ल्यूआईपी भी हो सकती है, फिनिश गुड्स भी। तीनों की वैल्यूएशन टेक्निक, मेजरमेंट टेक्निक अलग अलग है। डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स का क्वाइट सिमिलर है, बट रॉ मटेरियल का डिफरेंट है। तो ये हम लोग नया चीज सीखेंगे। तो अगर आप कोई पूछेगा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये ट्रू नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रू। Just hold on for a minute. Right? So there are three types of inventory: raw material, WIP, finished goods. In case of manufacturing concern, non-manufacturing में खाली finished goods होगा, क्योंकि non-manufacturing जिस नेचर शेप साइज में खरीदता है वैसा ही वो बेच देता है विदाउट चेंजिंग इट शेप साइज कलर, राइट? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, तीनों का वैल्यूएशन टेक्निक अलग अलग है। WIP in finished goods में you will find some similarity, but raw material is completely different than WIP in finished goods valuation. Then we talked about cost. जैसे मैं बोल रहा हूं ना, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो उस कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो वी विल लर्न व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। दिस इज वैल्यूएशन टेक्निक, राइट? ये हमारा वैल्यूएशन के बारे में बात होगा यहाँ पे, राइट? व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या नहीं लिया जाएगा, जैसे मैं बताता हूं, स्टोरेज कॉस्ट। आई हैव प्रोड्यूस द गुड्स, राइट? मैंने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, वो बिका नहीं है। मैंने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, अभी वो बिका नहीं है, राइट? तो गुड्स को पालने का खर्चा, फिनिश गुड्स को पालने का खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा। तो ये कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब नहीं आएगा। अब नॉर्मल लॉस, these are not included in cost of inventory. राइट? सो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, वी विल डिस्कस। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट फॉर्मूलास, राइट? FIFO, LIFO, weighted average, how you the different types of cost formulas, we will discuss about that. Weighted average, simple average, there are different cost formulas, but इस वाले में कौन कौन सा फॉलो होता है वो हम लोग बात करेंगे। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन सा मेंशन्ड है। Then techniques of measurement of cost, all these things we will discuss one after the another. So मेरे को समझ में आ गया सर, हमको इसके बारे में आप जो बता रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एसेट हो गया, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, राइट? तो हम लोग एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। हम लोग इन्वेंट्री का मीनिंग समझेंगे, मीनिंग हमने ऑलमोस्ट बता दिया है आपको। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, कॉस्ट फॉर्मूला, इस टाइप का चीज हम लोग बात करेंगे वन आफ्टर दी अनदर।
तो सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर आप पढ़ो ना, आपको लर्निंग आउटकम मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको लर्निंग आउटकम नहीं मालूम है, देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड, एज सिंपल एज दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर का लर्निंग आउटकम्स होता है कि हम क्या सीखने वाले हैं। चलिए, राइट। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमारा फिनिश गुड्स हो गया। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको अपने बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। राइट। नाउ मशीनरी स्पेयर, बड़े बड़े फैक्ट्री में इतनी बड़ी सारी मशीनरी होती है। अगर आप कोई भी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री में जाइए, सीमेंट इंडस्ट्री में जाइए, राइट, लाइफ में आपको एक फैक्ट्री विजिट मस्ट है, फैक्ट्री विजिट जरूर करिएगा। अगर आप फैक्ट्री में जाएंगे ना, इतनी बड़ी सारी मशीनरी है जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में खरीद के हम लोग असेंबल करते हैं, राइट। यूट्यूब में भी काफी सारा आप लोग वीडियोस देखते होंगे, जैसे पिज्जा मेकिंग, रोटी मेकिंग, राइट, बॉटलिंग्स, इस टाइप का काफी सारा मशीनरी दिखाता है। देन पैक्ड फूड्स कैसे बनता है, मिक्सचर का पैकिंग कैसे होता है, राइट, ये सब चीज का वीडियोस यूट्यूब में, इंस्टाग्राम्स में अवेलेबल है। मशीनरी which is helping me in production of goods, that is not inventory. लेकिन what about machinery spare, मतलब मशीनरी के पार्ट्स। कुछ कुछ मशीनरी पार्ट्स कैन बी यूज्ड इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर एसेट ओनली, राइट, एंड इट इज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो उसको एएस 10 के हिसाब से उसका अकाउंटिंग होगा। लेकिन जो जनरल मशीनरी स्पेयर्स है, लूज टूल्स है, कंज्यूमेबल्स है, राइट, नट, स्क्रू, पिंस, जनरल जो स्टफ्स होते हैं ना, उसको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बेसिस पे अकाउंटिंग करना है। इसलिए यहां पे लिखा है प्लस मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल, अदर देन दोज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपीई, वो भी इन्वेंट्री माना जाएगा। तो एज ऑफ नाउ खाली इतना सा बताऊंगा, अगर मशीनरी स्पेयर कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में ही यूज हो सकता है, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से अपन अकाउंटिंग करेंगे। अगर छोटा मोटा पार्ट्स है, जनरल मेंटेनेंस, सप्लाई है, राइट, सम काइंड ऑफ ऑयल, ग्रीजेस, इस टाइप का चीज हुआ, स्क्रू हुआ, पिंस हुआ, ब्रेक हुआ, इस टाइप का जो छोटा मोटा स्पेयर पार्ट्स है,
इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। सो इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? व्हाट विल कम इन इन्वेंट्री? बोलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या क्या आएगा? इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल which is yet to be used in the production of goods or services, WIP which is in the production of goods, finished goods produced but not yet sold, plus maintenance supply consumables which are not meeting the definition of AS10. Plus maintenance supplies and consumables which are not meeting the definition of AS10. Clear? ये सब चीज AS2 में कवर्ड नहीं है। These things are not covered in AS2. ये अपना अलग से AS7 में कवर्ड है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? नाउ ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, ये बिल्डिंग 10 तल्ले का बनेगा, अभी तक 5 फ्लोर्स रेडी हुआ है। सो दिस बिल्डिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज बिल्डिंग WIP, है ना? ये हमारा बिल्डिंग WIP है, यस और नो? हाँ, बचिएगा बुलाई नहीं बस, क्या हो रहे हैं? राइट? ये वाला चीज AS7 में कवर्ड होगा। यहां पे सीमेंट पड़ा हुआ है, सैंड पड़ा हुआ है, स्टोन चिप पड़ा हुआ है, ये मेरा क्या होगा? हाँ, रॉ मटेरियल। दिस विल बी एज पर AS2। ये डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन, कई बार बंद हो जा रहा है अपने आप, मतलब ये ब्लू लाइंस आ रहा है इसमें, राइट? अब मान लो इसमें से मैंने बिल्डिंग बनाया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको हैंडओवर कर दिया, बात वहीं खत्म। लेकिन बड़ा बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ प्रमोटर अपने पास रखता है, रीसेल के लिए, राइट? तो इसमें से अगर मैंने कुछ अपने पास रखा है फॉर रीसेल,
अब देखता हूं मैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। आई एम ए रियल एस्टेट डीलर, मैंने इसमें से बन गया 2-4 फ्लैट रीसेल के लिए रखा है, क्या बनेगा मेरे लिए ये? वेरी गुड, दिस इज व्हाई आई वांटेड टू हियर। AS2 में चला जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, कोई रियल एस्टेट डीलर मान लो मेरे से खरीद के अब वो उसको इन्वेंट्री पाल रहा है रीसेल के लिए, इज इट फाइन? सो ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो वर्किंग, अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्टी को हैंडओवर नहीं किया है। 10 तल्ले का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 तल्ला ही बनाया है अभी तक। तो ये वाला जो चीज है ना, वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी AS7। बट यहां इसको बनाने के लिए मेरे पास जो सीमेंट है, जो सैंड है, जो स्टोन चिप है, ये तो रॉ मटेरियल है, दिस विल बी AS2। और अगर कोई रियल एस्टेट डीलर होल्डिंग इट फॉर रीसेल, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्टी है ना, मैंने बिल्डिंग बनाया, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने बिल्डिंग बना के तुमको दे दिया, अब नाउ यू आर होल्डिंग इट फॉर रीसेल पर्पस, तो तुम्हारे लिए ये फिनिश गुड्स माना जाएगा। यस और नो? कॉन्ट्रैक्टर जब तक बिल्डिंग नहीं बना देता, राइट, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लिया है कॉन्ट्रैक्टी से बिल्डिंग बनाने का, कॉन्ट्रैक्टर पैसा लिया है बिल्डिंग बनाने का, किससे? कॉन्ट्रैक्टी से। मैं बना के तुमको हैंड ओवर कर दूंगा, तुम्हारा ये फिनिश गुड्स, प्रोवाइडेड यू आर होल्डिंग इट फॉर रीसेल। लेकिन जब तक मैंने हैंडओवर नहीं किया, मेरे बुक्स में, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में होगा ये, बिना बनाए हैंडओवर थोड़ी करूंगा। तो मेरे बुक्स में ये बिल्डिंग WIP, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। और मैंने आपको लास्ट से बताया भी था, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर टू पोस्टपोन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम फॉर 4 years। आप 4 साल तक इनकम क्या नहीं दिखाएंगे? कॉन्ट्रैक्टी से कोई पैसा नहीं लेंगे? जैसे जैसे 5 तल्ला बन चुका ना, आधा पैसा मैं तुमसे ले चुका हूं, उस आधा के बेसिस पे मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा, एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट टू माय शेयर होल्डर। क्लियर? सो तुमने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, राइट, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, इट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS7 कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टी के तो कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टी हैज जस्ट गिवन एन एडवांस। कॉन्ट्रैक्टी इसको यही दिखाएगा कि उसने जो भी पैसे दिए एक एडवांस के तौर पे वो ट्रीट करेगा उसको, क्योंकि उसको सामान नहीं मिला है अभी तक, खाली वो एडवांस दिए जा रहा है, पैसा दिए जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। तो इट इज फॉर कॉन्ट्रैक्टर, उसके बुक्स में ये WIP है। WIP मींस इन्वेंट्री वाला नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वाला। कॉन्ट्रैक्टर जितना पैसा मिला है प्रपोर्शनेट, उसके बेसिस पे प्रॉफिट दिखाएगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे सीमेंट पड़ा है, सैंड पड़ा है, स्टोन चिप पड़ा है, जो अभी तक यूज नहीं हुआ, तो ये वो AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, इसका वैल्यूएशन। लेकिन उसका ये जो WIP है, इसका वैल्यूएशन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्टी को हैंडओवर कर देगा बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्टी अगर इसको अपना यूज कर रहा है नो प्रॉब्लम,
लेकिन कॉन्ट्रैक्टी अगेन इफ इट इज होल्डिंग फॉर हेल्ड फॉर रीसेल, देन उसका ये फिनिश गुड्स माना जाएगा। रियल एस्टेट का आदमी लोग तो यही करता है ना, प्रॉपर्टी खरीदता तो ये उसका इन्वेंट्री हो गया, मेरा काम ही है ये प्रॉपर्टी खरीद के बेचना। इज इट ओके? सो ये वाला पार्ट हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में देखेंगे, हाउ कॉन्ट्रैक्टर records profit. This we will learn in AS7. Amount paid by contractee will simply advance contractee के books में, बस कुछ नहीं। सर्विस कंपनी का बात नहीं होगा यहां पे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। शेयर डिबेंचर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं एज एन स्टॉक एंड ट्रेड में शेयर का डीलर हूं, तब वो मेरा AS2 में जाएगा। इफ आई एम होल्डिंग शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डीलर हूं, मेरा काम ही है शेयर खरीद के बेचना, तो वो मेरा इन्वेंट्री हो जाएगा। ठीक है। राइट। लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ओर्स, ये सब AS2 में कवर्ड नहीं है। राइट। सर क्या क्या चीज कवर्ड नहीं है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, देन सर्विस प्रोवाइडर्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, देन लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब चीज AS2 में कवर्ड नहीं है। रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री नॉर्म्स है, उसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशंस होगी। राइट, ये सब मालूम है हम लोग को।
ये सब मैंने आपको बता दिया है कि स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, राइट? And I don't know whether you know this or not. This principle is purely based on prudence. Closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. This principle is purely based on prudence. This I will show you today. Right? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एक बार. बचपन में हम लोगों ने सीखा है क्लोजिंग स्टॉक is valued at ऐसा क्यों हो रहा है बार बार आज ये? नीचे का ठीक है, इसको ये तो कुछ नहीं है, ठीक है ये. चलो देखते हैं. हम लोग ने सीखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट cost of market price whichever is lower. Let us stick to this once and explain you prudence. ये जो प्रिंसिपल है ना, राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जो हम बात करते हैं, दिस इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी फॉलो व्हेन वी वैल्यू इन्वेंट्री. राइट? So this accounting principle for valuation of inventory is purely based on prudence. ये मैं आपको प्रूफ करूंगा. यहां पर भी वही बोला है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस ओनली. सपोज करिए ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है. कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, मैंने 10 पीस खरीदा 10 रुपया करके, तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 100. हाँ या ना? सेल, मैंने 8 पीस बेच दिया 15 करके, 120 मेरा सेल हो गया. अब यहां हम लोग इन्वेंट्री दिखाएंगे. इन्वेंट्री मेरा 2 पीस 10 रुपया करके 20 रुपीज इज द कॉस्ट. सपोज करो 2 पीस का मार्केट प्राइस 16 रुपया है. मतलब करेंटली एट ईयर एंड द मार्केट प्राइस इज 16 रुपीज. राइट? ईयर एंड में हमारा मार्केट प्राइस 16 रुपया है. नाउ यू टेल मी, हमको क्लोजिंग स्टॉक को 20 में दिखाना चाहिए कि 32 पे? What if I show it at 32? Then in that case my profit will be 52. How this 52 arrived at? 8 पीस का 5 रुपया करके एंड 2 पीस का 6 रुपया करके. क्योंकि सिंस आई हैव शोन दिस 2 पीस एट 16, सो ऑटोमेटिकली जो माल नहीं बिका है उसका भी प्रॉफिट बुक्स में आ जा रहा है. तो कंजर्वेटिज्म क्या बोला? आई एम अगेंस्ट दिस.
कंजर्वेटिज्म क्या बोला? आई एम अगेंस्ट दिस. इट मीन्स हम लोगों को 32 नहीं लेना है, हम लोगों को 20 लेना है. कंजर्वेटिज्म बोलता है क्या फ्यूचर प्रॉफिट को दिखाओ? कभी नहीं बोलता है कंजर्वेटिज्म. नेवर. कंजर्वेटिज्म कभी बोलता ही नहीं है फ्यूचर प्रॉफिट को दिखाओ. इट मींस क्लोजिंग स्टॉक शुड बी शोन एट कॉस्ट. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं 20 में दिखाऊंगा तो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? 40. एंड दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनली यूनिट सोल्ड. है ना? टेक अनदर एग्जांपल. Cost is 100, sale is 120, inventory. राइट. सपोज मार्केट प्राइस गिर के 8 रुपया हो गया तो 16 रुपया. अब आप बताइए मेरे को इस स्टॉक को कितना पे दिखाना चाहिए? 20 पे कि 16 पे? अगर सपोज कोई बोलता है नहीं 20 पे दिखाओ तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40. लेकिन व्हाट डज कंजर्वेटिज्म से? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को मत दिखाओ, इसलिए मैंने 20 पे दिखाया. 32 पे दिखाने से प्रॉफिट आ जाएगा फ्यूचर का. लेकिन फ्यूचर में होने वाला लॉस को दिखाने बोल रहा है ना. फ्यूचर में होने वाला लॉस को दिखाने बोल रहा है ना. They are telling us to show future profit or not. No future profit, but future loss, yes. It means if I show this at 16, then profit will be 36. तो एज अ रिजल्ट 8 पीस पे मैंने 5 करके कमाया एंड 2 पीस का 2 रुपया करके 4 रुपया लॉस दिखाया. तो इन दोनों को कंबाइन करके अल्टीमेटली दे सेड लोअर. क्योंकि देखो 20 और 32 में आई एम टेकिंग 20. 20 एंड 32 में व्हाट आई एम टेकिंग? 20 मींस लोअर. और 20 और 16 में क्या ले रहा हूं मैं? 16 लोअर. तब जाके ये लोअर वाला प्रिंसिपल बना है दोस्त. 90% से भी ज्यादा बच्चों को ये चीज मालूम नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रिंसिपल है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर.
is because of prudence, conservatism. मैंने आपको क्या बोला? This book is drafted very beautifully. Stick to this study material. हर एक एक चीज सिखाया जाया है, राइट? इज इट फाइन एवरीवन? आई गेस ऑल ओके. चलिए, सो सबको समझ में आ गया लोअर वाला प्रिंसिपल का नियम? क्योंकि कंजर्वेटिज्म बोलता है फ्यूचर प्रॉफिट दिखाइए कि नहीं दिखाइए, नहीं दिखाइए, फ्यूचर लॉस को दिखाना है. इसीलिए मैंने आपको दोनों केस दिखाया है, राइट? कॉपी हो गया आप लोग का? चलिए, लेट्स मूव अहेड. अब नॉर्मल लॉसेस को नहीं लिया जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, वही बता रहा है. और कंपनीज एक्ट, अगर मैं कोई कंपनी की बात करूं, राइट, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, मैंने बोला था ना नकास वाला एएस कौन फॉलो करता है? इंडियन कंपनीज. सो यहां पे कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देगा वो लोग कहीं ना कहीं, राइट? आपने क्या वैल्यूएशन मेथड फॉलो किया है ये आपको बताना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. So as of now, I'm very clear with my concept. Inventory, raw material, WIP, finished goods plus मशीनरी स्पेयर्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में नहीं आता, राइट? अगर कोई स्पेयर पार्ट एक ही पर्टिकुलर मशीनरी में यूज हो सकता है, उसका यूज इरेगुलर है, राइट, देन इन दैट केस हम लोग उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से दिखाएंगे. और कोई जनरल मेंटेनेंस सप्लाई है, कंज्यूमेबल्स है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, नट स्क्रू पिंस इस टाइप का, वो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से दिखाएंगे, राइट? कुछ कुछ AS2 में कवर्ड नहीं है, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स, देन इन्वेस्टमेंट्स एंड तुम्हारा, हालांकि इन्वेस्टमेंट्स में भी कुछ कुछ वैल्यूएशन नॉर्म्स यू विल फाइंड एज सिमिलर टू इन्वेंट्री, बट दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. अलग से अगर स्टॉक इन ट्रेड है देन इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑन सेल्फ. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, राइट? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे कोई सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप पड़ा है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरी लेने के बाद अगर अपने पास हेल्ड फॉर रीसेल है, देन वो उसके लिए फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी बनेगा, राइट? So now we'll be talking about measurement, the valuation norms. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें हम लोग काफी सारा प्रैक्टिकल्स अभी करेंगे आपके सामने, राइट? देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है. रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन टेक्निक अलग है, राइट? इन दोनों का सेम है, मैंने आपको बताया था ना. तो बचपन से जो सीखते आए हैं ना अपने, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ब्रो, दैट इज फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड WIP. अभी तक आपने कहीं पर भी रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन नहीं सीखा है, राइट? वो मैं आपको आज सिखाऊंगा. तो सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स का बात कर लेते हैं, WIP का बात कर लेते हैं. बोलता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस नहीं, कॉस्ट और NRV. व्हाट इज NRV? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV. बोला जो आपका ESP है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस,
माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस, अगर डब्ल्यूआईपी के केस में यह चीज पॉसिबल है, अगर डब्ल्यूआईपी मींस इनकम्प्लीट है तो फ्यूचर में उसको कंप्लीट करने का जो खर्चा लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको भी लेस करना है। अभी के लिए आप कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस समझ लीजिए, सिंपल फंडा है। ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप लोग का इंटरमीडिएट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, उसमें भी आप लोग हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोग जानेंगे। एंड बहुत जन के प्लस टू के सिलेबस में भी था ये चीज, कॉस्ट शीट बोल के, प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। सो एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फिनिश गुड्स खरीदेगा, हाँ है ना। नॉन मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स खरीदेगा तो जिस प्राइस में खरीदा वही उसका कॉस्ट हो गया, राइट। सो कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी मींस क्या प्राइस में आप इसको बेच पाएंगे, क्या आपका सेलिंग एक्सपेंस लगेगा, और अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने का और फर्दर कॉस्ट कितना लगेगा, राइट। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो वर्कशीट दूंगा उसमें इसमें कॉमन निकलेगा, राइट। लेट अस डू एग्जांपल 1। Forget about raw material right now. Only focus on finished goods and WIP. Just give it a reading. पार्टली कंप्लीटेड मतलब WIP वैल्यूएशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। This is already cost that we have incurred. So ये हमारा कॉस्ट बनेगा। इसको कंप्लीट करने के लिए 100 रुपए का और खर्चा करना पड़ेगा। सो दिस इज फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इसके बाद हम इसको 250 में बेच पाएंगे, सेलिंग प्राइस, और 4% ब्रोकरेज देना पड़ेगा एजेंट को, राइट। सो एग्जाम्पल 1, closing stock is to be valued at cost or NRV, whichever is lower. So how much is cost? That is 150. Cost that has been incurred.
NRV, estimated selling price 250, selling expenses 4% of 250 minus further cost 100. How much? 140. So closing stock valuation is it fine? चलिए अब हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट के बारे में बात करेंगे. बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ही अपने को ये माथा लगाना है. नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में तो परचेज प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट? तो यूजुअली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल परचेज प्राइस आएगा. जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारा रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस आएगा प्लस लेबर कॉस्ट आएगा प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इन दोनों को मिला के हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं. दिस इज कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. लेबर कॉस्ट मतलब द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स. नाउ ओवरहेड मींस अदर कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर. अगर मैं ओवरहेड कॉस्ट की बात करूं, ऑल अदर कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, क्योंकि मटेरियल मींस रॉ मटेरियल,
है ना? लेबर मीन्स लेबर पेमेंट्स, वेजेस. What are the other cost other than material and wages? Factory rent, power consumption, supervisor salary, depreciation on machinery, depreciation of office furniture, depreciation of delivery van, advertisement. ये सब अदर कॉस्ट है, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड अदर कॉस्ट लेना है. मटेरियल, लेबर पेमेंट, इसके अलावा अदर कॉस्ट क्या क्या होगा? फैक्ट्री रेंट, पावर, सुपरवाइजर सैलरी, depreciation on machinery, office rent, depreciation of on office furniture, salesman salary, advertisement, depreciation on delivery van. राइट दोस्त? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे मुझे. ये मेरा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, ये भी मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. दिस इज एडमिन, दिस इज एडमिन. और मैंने आपको बताया ना, एडमिन रिलेटेड कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं. दिस इज सेल्स रिलेटेड खर्चा, इन सब चीज को भी कंसीडर नहीं होगा. स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट मतलब वेयर हाउस कॉस्ट, इसको पालने का खर्चा. एक बार माल बन गया, उसके बाद उसको पाल रहा हूं मैं. एबनॉर्मल लॉस, these are not considered in cost of inventory. Only material, labor, production related cost. No storage related, no admin, no sales, no distribution, nothing. Is it fine? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड नहीं कंसिडर करना है, स्टोरेज रिलेटेड नहीं करना है, एडमिन रिलेटेड नहीं करना है, सेल्स रिलेटेड नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड नहीं करना है. अब नॉर्म ये सब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा, खाली प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा आएगा. हाँ या ना? बढ़े आगे. क्लियर नाउ? अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा
रॉ मटेरियल का. रॉ मटेरियल मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज. आपको मालूम है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परचेज सेल पे लगता है. परचेज पे मैं देता हूं, सेल पे मैं कलेक्ट करता हूं, राइट. मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा वेंडर से, 18 रुपया जीएसटी दिया. अब मैं इसको 150 में बेच रहा हूं, 27 रुपया मैंने कलेक्ट किया, तो 177 इज माई टोटल कलेक्शन. So this is I have paid at the time of purchase. This is collected at the time of sale. Who will bear GST? Consumer. But I have already paid at the time of purchase. So from GST collected 27. From GST collected 27, I will first recover tax paid at the time of purchase, 18 rupees, right? Remaining 9 I will go to government. Now you will say me, sir, you collected tax 27, but government is getting only 9. No, government is getting 27. Because this 18 which I paid to my vendor, he will pay government 18. Indirect tax में ऐसा ही होता है. सामने वाला आपसे कलेक्ट करेगा and then he will pay to the government. Government is supposed to get total में 27. I collected 27 when I sold. उसमें से I have already, because I am not the person who will bear tax. So from GST collected, I will subtract tax paid. इसको हम लोग बोलते हैं input tax credit. What do you call it as? Input tax credit. Ultimately, this is net GST payable to government. Right? This is how it works. Now, suppose मैंने 100 में माल खरीदा, रॉ मटेरियल. अच्छा, ये जो मैंने 50 का जो एडिशन हुआ ना, ये 50 क्या चीज का है? कन्वर्जन कॉस्ट प्लस माय प्रॉफिट. गॉट इट? आई परचेज रॉ मटेरियल, आई हैव एडेड सम लेबर इन दैट. कोई मैन्युफैक्चर किया होगा, उसको वेजेस दिया होगा मैंने, ओवरहेड कॉस्ट होगा मेरा, प्लस मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, इससे बोल के मेरा सेलिंग प्राइस 150 आया. तो मैंने कंज्यूमर से 27 ले लिया जीएसटी का, टोटल प्राइस कलेक्टेड इज 177. तो जीएसटी का आई कलेक्टेड 27, but I already paid 18 because I am not the person who will bear. So I will pay government 9. How much we collected from consumer? 27, but I am paying 9 only to government. Government को लॉस नहीं हुआ है, because when I paid 18 to my vendor, वो वेंडर 18 रुपया सरकार को दे दिया होगा. So 18 plus not 29, 18 plus 9, 27. I collected from consumer 27. हो गया हिसाब. Right? You will study in your indirect tax. Anyway, the thing which I was explaining, which is more important. So purchase करते हुए I paid 18, टोटल मिला के 118 हो गया, मैंने पे किया, पेड. नाउ मैं गुड्स 150 में बेच रहा हूं, गुड्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से. So no GST I have collected from consumer. So if I am dealing in goods which is exempted,
in that case, I will not going to get credit of this because nothing is payable to government. Zero collected. So when it is zero collected on account of exemption, because goods are outside the purview of GST, no credit for tax paid at the time of purchase. So then in that case, right, this is your cost. As simple as that. Earlier I was getting benefit of this. I recovered this 18, so it cannot be my cost. But now I have paid, but I cannot recover. So ultimately this is my cost. So here my cost of purchase is 100. Here my cost of purchase is 118. Okay. I guess things are very clear to all of you. There is no such problem in this. ठीक है? So यहाँ पे clearly लिखा है, I'll just mark it out. Purchase price में it will include duties and taxes other than those recoverable. Means credit नहीं मिला. जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा है उसको कॉस्ट में ऐड कर दो. Simply add the tax if you are not eligible for ITC, input tax credit. Right? Add tax paid on purchase with purchase price if no ITC. Right? Now, is it okay? Now listen to me. How to get production cost? Suppose करो, I have purchased raw material, right? This is per unit. I have purchased 2 kg and rate is 10 rupees per kg.
एक प्रोडक्ट बनाने में 2 kg चाहिए रॉ मटेरियल और रेट इज 10 per kg. सो व्हाट इज माय रॉ मटेरियल कॉस्ट? बोलिए. रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 रुपया हो गया ना. वेजेस मीन्स द लेबर पेमेंट. Right? Suppose it will take 2 hours and the labor is charging 20 rupees per hour. So 40 rupees is the labor payment. Power. Let us assume कि 2 घंटा ही बिजली जल रहा है and power cost is 10 per hour. So 20 is power cost. Right? And let us assume we have only rent. ठीक है. हाँ, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि खाली रेंट है और ओवरहेड नहीं है. फैक्ट्री रेंट ही है ये. नाउ 20,000 पूरे महीने का भाड़ा 20,000 है. सर ये कैसा चीज हो गया है? आपने बोला मटेरियल कॉस्ट 20 रुपया पर यूनिट, वेजेस 40 रुपया पर यूनिट, पावर भी ओवरहेड है. बस इसको अपने बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड. क्या बोलेंगे इसको अपन? वेरिएबल ओवरहेड. जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा पावर कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा मशीनरी में. सर इसको अपन बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड. ये भी प्रोडक्शन रिलेटेड ही है बट ये फिक्स ओवरहेड है. It does not depend upon how much is your power consumption, how much is your labor hour, how much is your volume produced. But something or the other has to be there. So when you do calculate cost of the product, you have to make an assumption ki how much will be your production during the month. Otherwise, I won't be able to include this particular cost in production cost. बात हुआ है सारा प्रोडक्शन कॉस्ट लेने का. बाकी में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाकी इजीली डिटरमाइनेबल है. पर यूनिट कितना लगेगा? 1 यूनिट बनाने में 2 रॉ मटेरियल लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा बिजली जलेगा. उसी हिसाब से हमारा कॉस्ट आ गया. बट रेंट ये तो फिक्स होता है. तो हमने अनुमान लगाया 400 यूनिट. ये हमारा एस्टिमेशन है ब्रो. हाँ, तो 50 रुपया हमारा ओवरहेड का शेयर आएगा. सो दिस इज 130.
is my cost of inventory. And my dear friend, ये कॉस्ट खाली वैल्यूएशन में यूज नहीं होता है, इसको अपने बोलते हैं कॉस्टिंग. क्या बोलेंगे इसको अपने? कॉस्टिंग. This costing is also done at the beginning of the year in order to calculate the selling price. Are you getting my point? अपन को सेलिंग प्राइस निकालने का है सर, तो भी अपन ये कॉस्टिंग करेंगे. ये तो अपन अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो वी आर डूइंग दिस प्रोसेस. The same process will be done at the beginning of the year also to calculate selling price. Now, my dear friend, when we are calculating selling price at the beginning of the year, we will not be having actual data. We'll be having estimated data. On the basis of that, costing is done. On the basis of that, the selling price is calculated. But when you are calculating for the valuation of closing stock, for the purpose of financial accounting, for the purpose of PL balance sheet, these are actual cost. There might be a case at the beginning of the year, there might be कि raw material was 9 rupees 80 paisa. High probability. So that was costing. This is also costing. But that costing you do for the purpose of selling price, उसमें सारा का सारा डेटा अनुमान होता है, एस्टिमेशन होता है. लेकिन यहां पे सारा का सारा डेटा एक्चुअल है. ओनली एक चीज अनुमान है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन. इज इट फाइन एवरीवन? कि भैया नॉर्मली क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे आप? नॉर्मली मैं 400 प्रोड्यूस कर पाऊंगा. इसको अपन कॉस्टिंग लैंग्वेज में नॉर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं. बाकी सब दोस्त, सब मतलब सब, each and every data is actual cost. This is actual. This is actual. This is actual. This is actual. Got my point? So ये costing भी beginning of the year होता है. This costing is also done at the beginning of the year. ये कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कॉस्ट जब निकालते हैं ना, एनआरवी कॉस्ट निकालने के लिए ये इस तरीके से कॉस्टिंग वापस करना पड़ता है. वहां एस्टिमेटेड था, अनुमान था, यहाँ एक्चुअल डेटा है. खाली एक ही चीज अनुमान वाला है, वो नॉर्मल कैपेसिटी, कितना आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे कॉस्टिंग हुआ था. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में मैं आपको दिखाता हूं, ये वही बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड को एवरेज बेसिस पे ओवर नॉर्मल कैपेसिटी. नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज आप कितना कर पाएंगे. ठीक है? अभी आपको ये वाला एग्जांपल मैं करवाऊंगा. अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, मैंने अभी इसका थोड़ा सा ही डिस्कशन किया है, मैं अभी और करूंगा इस पे डिस्कशन. राइट? अभी कॉपीड दिस. चलो, समझ में आ गया? तो इफ समवन आस्क यू कि फिक्स्ड ओवरहेड तो टोटल होता है,
how you include in cost of the product on an average basis, right? Overhead cost divided by normal capacity, मतलब क्या हमारा एवरेज में प्रोडक्शन होगा. Is it fine? I think this is absolutely okay with all of you. चलिए, तो हम लोग बात करते हैं प्लांट हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स. ठीक है. एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज 18 लाख. फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी इज 18. कैसे आया फिक्स्ड ओवरहेड, कैसे आया बताइए? 18 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट इज हाउ मच? 18 रुपीज पर यूनिट. सिंपली ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी. ठीक है. राइट. हाँ, हम लोग भी वही किया है. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 400 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाई 400 होगा. अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन 350 होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब तभी भी हम लोग यहां पे 400 ही लेंगे. बट इन दैट केस व्हाट विल हैपन, 50 यूनिट्स लेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. है ना? आज अपने 50 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन कम हुआ है, क्या 50 यूनिट्स का हमको रॉ मटेरियल लगा होगा? बोलो, क्या 50 यूनिट्स का हमने वेजेस, बिकॉज़ दीज आर वेरिएबल, जितना होगा उतना ही का देंगे. लेकिन 50 यूनिट्स का ओवरहेड तो फिक्स रहता है ना. ओवरहेड का एवरेज आपने क्या पकड़ के निकाला? 400 करके. बट अल्टीमेटली आप 350 ही बेच पाए, 350 का ही पैसा आया आपके घर में, तो 50 का पैसा नहीं आया ना. 50 का पैसा नहीं आया मतलब 50 का ओवरहेड कॉस्ट भी नहीं आया आपके घर में. धंधा क्या होता है, जगह जगह से माल खरीद के लाता हूं, खर्चा करता हूं, कस्टमर को प्रॉफिट ऐड करके बेचता हूं. तो 50 तो बना ही नहीं पाया, बेच ही नहीं पाया, प्रॉफिट तो छोड़ो, ओवरहेड कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाया. यस और नो? तो 50 यूनिट्स का एवरेज 50 रुपीज आया था, दैट इज रुपीज 2500 का लॉस है. इसको अपने बोलते हैं अंडर रिकवरी, कॉस्टिंग के लैंग्वेज में, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, एंड इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It will be charged to profit and loss account.
50 units less produce means no SP, no raw material, no labor cost, no variable overhead, बट फिक्स कॉस्ट तो है ना. डन. अब दूसरा सोचो. केस 3. एक्चुअल प्रोडक्शन 500 यूनिट हो गया. मतलब 100 यूनिट्स more produced and sold. हाँ, तो 100 यूनिट्स पे तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कमाया. हाँ या ना. 100 यूनिट्स का तुमने रॉ मटेरियल कॉस्ट भी दिया, 100 यूनिट्स का लेबर भी दिया, वेरिएबल ओवरहेड भी दिया. क्या 100 यूनिट्स का तुमने फिक्स कॉस्ट दिया? फिक्स कॉस्ट तो 400 को एवरेज करके निकाला गया है. इसका मतलब 100 यूनिट्स पे 50 रुपीस करके 5000 रुपीस का आपने प्रॉफिट किया है, apart from the normal profit which you have in the selling price. So this is over recovery of overhead not allowed as per AS2. बेसिकली ये गेन हो गया. कॉस्टिंग जब आप करेंगे ना, तब आप अंडर रिकवरी भी दिखाते हैं, आप ओवर रिकवरी भी दिखाते हैं. सौ यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, 100 यूनिट पे एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है. लेकिन 100 यूनिट का ओवरहेड का भी पैसा एक्स्ट्रा आया, बट आपको तो लगा नहीं ना. आपका एस्टिमेशन था 400. तो बोलता है कॉस्टिंग में क्या करोगे हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम अकाउंट्स पढ़ाने आए हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोल दिया भैया बेफिजूल का प्रॉफिट नहीं दिखाना है. तो हम लोग क्या करेंगे, while calculating cost of inventory we will take actual production as denominator for fixed overhead
cost allocation. So in that case, raw material cost is 20, labor cost is 40, variable overhead means power 20, fixed overhead it will be 20,000 by 500 units. कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है. कॉस्टिंग में अंडर हो ओवर हो सब ईयर एंड में दिखाते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, कॉस्ट कंट्रोल है. वहां पे ओवर परफॉर्मेंस होगा तो आपको दिखाना पड़ता है, या लेकिन यहाँ पे कॉस्ट को ओवर स्टेट करके नहीं दिखाने का हमारा मकसद नहीं है, प्रूडेंस इसके खिलाफ है. तो इन दैट केस मेरा फिक्स्ड ओवरहेड 40 आएगा. अल्टीमेटली माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 120, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगा. डोंट रिकॉग्नाइज ओवर रिकवरी as gain in profit and loss account, rather reduce the cost of inventory, rather reduce the cost of inventory. तो सिंपल फंडा समझ लो, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन जो नॉर्मल कैपेसिटी देगा ना उससे कम या इक्वल है तो डिनोमिनेटर में नॉर्मल प्रोडक्शन लेंगे, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे. सिंपल फंडा है. In this case, what was my cost of inventory? 130. But out here, my cost of inventory is 120. Clear? So now ये लोग उसी चीज को यहां समझाया है अगले इसी में. एक्चुअल प्रोडक्शन is equal to normal capacity, no problem. Actual production is less than normal capacity, so under recovery show करेंगे. Under recovery, that is 10k into 18. 10k is less produced. $180,000 इज अंडर रिकवरी लॉस. देखो यहां लिखा हुआ भी है.
and in this case actual production is more than normal capacity, use actual production as denominator. So out here it is 18 lakh. We will change the average. ₹15 per unit. This is included in cost of inventory. Earlier it was ₹18 per unit. Out here it is ₹15 per unit. Okay. I guess this is absolutely fine with all of you. Now, okay, wait. This is the last topic for today. Then we will continue in the next session. This you will learn specifically in costing, cost and management accounting paper. But मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा. बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा अभी. Right? In CMA you are going to learn it separately. Right? So what is joint product? मतलब एक इनपुट है, राइट? अगर मैं क्रूड को प्रोसेस करता हूं तो पेट्रोलियम, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन, बहुत सारा चीज निकलता है. तो कहने का मतलब है एक इनपुट को आई एम प्रोसेसिंग, इनपुट का कॉस्ट इज 1 लाख से फॉर एग्जांपल, एंड इससे दो प्रोडक्ट्स निकल रहे साइमल्टेनियसली. इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. Two products are getting produced, A and B. Right? Now what is the problem here? So this is known as common input. इसको क्या बोलेंगे अपन? Common input. तो common input से दो प्रोडक्ट निकल रहा है. So my point is, what is cost of A? And my point is, what is cost of B? This is my problem. मेरा प्रॉब्लम क्या है? A का कॉस्ट क्या है और B का कॉस्ट क्या है? ये मेरा प्रॉब्लम है. तो there are various methods on the basis of which you can allocate. इसको कॉमन इनपुट का जो कॉस्ट है ना, इसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट? जैसे वन ऑफ द मेथड बोलता है जितना यूनिट ए का प्रोड्यूस हुआ, जितना यूनिट बी का प्रोड्यूस हुआ, उसके बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो. तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड फिजिकल इन्वेंट्री मेथड. क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल inventory method. So A is like joint cost allocated to A, joint cost allocated to B. It is 1 lakh into 2000 by 5000. कितना आ रहा है? 40,000. 1 lakh into फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल इन्वेंट्री मेथड एक ही बात है. कॉस्टिंग में फिजिकल यूनिट मेथड. हाँ,
तो एक इनपुट है, उससे दो प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली इमर्ज हो रहा है एक कॉमन प्रोसेसिंग करके। ए निकला 2000, बी निकला 3000। अब मेरा मुद्दा क्या है, ए का कॉस्ट क्या है, बी का कॉस्ट क्या है। तो ये कॉमन कॉस्ट को मेरे को इन दोनों में एलोकेट करना है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स। एक मेथड मैंने बताया, जितना यूनिट्स ऑब्टेन हुआ है ना स्प्लिट ऑफ में, दिस इज यूनिट्स ऑब्टेन्ड एट स्प्लिट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाट वी कॉल इट एज यूनिट्स obtained at split off। राइट। एक और मेथड है, जस्ट आई एम डूइंग दैट मेथड। सपोज आई विल सेल इट एट say 50 rupees and I will sell this for say 100 rupees. So another method is sellable value at split of point method. Sellable value at split of point method. राइट। इसको बेच के क्या रेवेन्यू आएगा, 1 लाख। इसको बेच के क्या रेवेन्यू आएगा, 3 लाख। राइट। सो बोल रहा है इन दैट केस 1:3 का रेशियो में डिवाइड करो। जिस प्रोडक्ट से जितना रेवेन्यू आएगा उसके बेसिस पे डिवाइड करो जॉइंट कॉस्ट को। बहुत सारे मेथड्स है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड है, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड है। एक मेथड नहीं हो तो बताऊं बेटा, बहुत सारा मेथड है। सो 1/4 इंटू 1 लाख, 25,000। 3/4 इंटू 1 लाख, 75,000। राइट। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन इनपुट का कॉस्ट को डिवाइड करेंगे।
सो joint product समझ में आया, which emerge simultaneously from a common input or processing. The problem is how we find out the cost of joint products. So there are various allocation methods. Some says on the basis of units obtained, some say no on the basis of value to be fetched, some say no net realizable. अलग अलग methods है bro, right? तो वाला costing chapter में आप लोग सीखेंगे. It's not a big deal. Is it okay? चलिए, so this is for today. So next day we will continue with inventory, right? तो मैंने अभी तक जो जो पढ़ाया है ना, आप लोग एक बार उसको रीड करिएगा, right? Then we continue with other cost, and उसके बाद क्या क्या एक्सक्लूड होगा ये मालूम है. Cost formulas generally you have done in your +2 level or semester exams, right? Then there are few other techniques, and बस उसके बाद ये सब हो गया. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं. वाओ. Then test your knowledge. There are a few more questions. Then we'll be done. That's cool. So इसको पढ़ के आइएगा, right? So learning objective समझ में आएगा ना, तो आगे बहुत easy हो जाता है काम आपका. चलिए, thank you so much for today. Bye bye.